Greetings everybody. Today's topic is marginal utility analysis. I'm going to explain you this topic. First of all, I would like to tell you that this topic is covered under microeconomics under the unit theory of consumer behavior. Okay, theory of consumer behavior comprises of many different parts. As you all know, theory of consumer behavior means how the customer or a consumer responds or reacts or behaves with the changes in the market, with each and every fluctuations in the market. For example, changes in the prices of the goods they were consuming, changes in the income pattern, changes in the savings, investment, expenditure, changes in the demand, supply. Okay, so these are some market fluctuations. Any import, export, these are, it is covered under the macroeconomics, but it is kind of a consumer behavior theory only. Okay, so how the consumer responds to each and every changes, we studied this under the theory of consumer behavior unit. Okay, so today we are going to study the marginal utility analysis, okay, in detail, that what is marginal utility analysis, how does it come from and where does it come from. Okay, so first of all, what are wants, what are human wants? Human wants क्या होता है? फर्स्ट अपना आता है डिजायर. डिजायर मीन्स कंज्यूमर की इच्छा किसी भी चीज को कंज्यूम करने की. ठीक है. देन वांट, वांट द डिजायर व्हेन इट इज बैक्ड with a determination to buy something. Okay, and want, to turn the want into a demand, it should be backed with the purchasing power. So features of human wants I am going to explain you. What are the features of human wants? First of all, human wants are unlimited. ओके, ह्यूमन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी चीज से. अगर उसको एक चीज चाहिए तो फिर उसको नेक्स्ट एक्सक्लूसिव चीज चाहिए. अगर उसने मीडियम क्वालिटी का मीडियम क्वांटिटी उसने कंज्यूम कर लिया है तो उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट की एक अच्छी क्वालिटी चाहिए. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा कि नहीं मुझे बस इतना ही चाहिए. उसकी वांट्स बहुत ज्यादा होती है. अगर एक रिच इंसान है तो वो ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के बाद वो शांत बैठ गया घर पे, वो और पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करेगा. सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, दैट अ रिच पर्सन कंटिन्यूज टू अर्न मनी. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट satisfied with what he is having right now. Okay, so human wants are unlimited. Second one, satiable. Satiable means any want which can be satisfied. Okay, तो human wants कभी ऐसी नहीं होती कि उसको कभी satisfy नहीं किया जा सकता. हर एक want जो है consumer की, उसको satisfy करने के लिए एक solution या फिर एक goods और services already produced बैठी है market में. Okay, so human wants are satiable. Human wants satiate हो सकती है, satisfy हो सकती है. Unlimited जरूर है, but हर एक want जो है वो satisfy होने के लायक है. Repetitive. If I'm wanting a chocolate today, that doesn't mean I will not want a chocolate tomorrow. Okay, so it is a kind of a repetitive. Human wants repetitive होते हैं. अगर मुझे आज कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे जीवन में उसको कभी दोबारा कंज्यूम करना नहीं चाहूंगी. मुझे कल भी वो चीज चाहिए पड़ेगा. ओके, अर्जेंसी. ह्यूमन वॉन्ट्स की कैटेगरी होती है अर्जेंसी. कुछ चीजें होती है जो मुझे अर्जेंटली चाहिए होगा. ओके, वेरिएबल. Human wants vary with age, occupation, age and occupation. I am 21 years old. मेरी जो requirements हैं to consume the goods and services वो बहुत ही different होगी in comparison with my father. My father is 50 years old. उनके जो wants है, उनके जो desires है वो मुझसे बिल्कुल different है. He wants a shirt. He wants a you can say a land. And I want what? The academic books. Okay, so with the age and with the occupation, I am a teacher. मेरी requirements अलग होगी. My father is a businessman. उनकी requirements अलग होगी. तो अलग अलग occupation के हिसाब से and अलग अलग age के हिसाब से human wants vary करती है. Priority and competitiveness. Priority. Now priority मतलब क्या होता है? किस चीज को मैं ज्यादा importance दे रही हूँ, है ना? तो human wants भी जो है वो priority के basis में कभी कभी लाई जाती है. कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कुछ चीजें हैं जो हम कॉम्पिटिशन के वजह से कंज्यूम करते हैं. लाइक अंडर द ब्रांडवैगन इफेक्ट, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द ब्रांडवैगन इफेक्ट. ओके, अंडर दिस व्हाट हैपेंस, I am
am consuming under the social pressure or a peer pressure, that is the competitiveness. तो कुछ wants इस कैटेगरी की भी होती है कि अगर मेरे फ्रेंड्स कुछ चीजें खरीद रहे हैं, even when I can't afford that, still I want that. Why? Because I am under the peer pressure, I am under the social pressure, I am under the bandwagon effect. Complimentary. Now complimentary wants क्या होती है? पेन के साथ इंक चाहिए होगी, कॉपी का के लिए मैं क्या करूंगी, उसके साथ पेन या पेंसिल चाहिए होगा इसको लिखने के लिए. शूज का मैं के लिए क्या करूंगी, उसके साथ मुझे सॉक्स चाहिए होगा, कार के साथ मुझे पेट्रोल चाहिए होगा. सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑल्टरनेटिव्स. एंड ह्यूमन वांट्स कभी भी रिजिड नहीं रहती है, हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट बना हुआ है मार्केट में. ओके, टी का कॉफी है, ऐसे ही बहुत सारी चीजों का सब्स्टिट्यूट बना हुआ है. मैं प्रियोरिटाइज नहीं करती हूँ कपड़ों में कि मुझे कॉटन के ही कपड़े पहनने हैं. आई नो कि बहुत सारे फैब्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में, सिल्क के भी है, सब कुछ के, तो मतलब वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है उस चीज के, और सेटिस्फाई मैं हो रही हूँ उनके ऑल्टरनेटिव से भी. ओके, हैबिट. ह्यूमन वांट्स की जो कैटेगरी है उसमें हैबिट भी इंक्लूडेड है. ओके, मेरी कुछ हैबिट है, इवन व्हेन आई डोंट लाइक दैट थिंग और इवन व्हेन आई लाइक इट वेरी मच, वो मेरी हैबिट बन चुका है, तो मतलब मैं उसको परचेज करने ही वाली हूँ. सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स. देयर आर मेनी रिचुअल्स इन इंडिया स्पेशली, जिसके वजह से हम कुछ चीजें पर्टिकुलरली वांट करते हैं. ओके, तो लाइक during the funeral or during the birth of a child, these kind of rituals, during the marriage. तो इन रिचुअल्स के अंदर भी कुछ wants अपने आप अकर हो जाती है ह्यूमन की. Understood everyone? Now the next one is classification of human wants. अब human wants को मैंने classify किया है क्योंकि human wants हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. ओके, और हमेशा ह्यूमन वांट्स को हम एक ही कैटेगरी के अंदर डालेंगे तो दैट विल नॉट जस्टिफाई द ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी वांट्स एंड सेकेंडरी वांट्स. प्राइमरी वांट्स मतलब मेन, सेकेंडरी मतलब मेन के जो बाद आ रहे हैं. प्राइमरी में नेसेसिटी, हमारी नेसेसिटी के बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी, द फूड, शेल्टर एंड द वाटर. ओके, सो ये नेसेसिटी है, मतलब फूड मुझे चाहिए ही होगा, ये मेरी प्राइमरी वांट है. प्राइमरी वांट के अंदर मेरा क्या आएगा, मेरा खाना. ओके, खाने में मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ, कितना मैं कंजम्पशन के लिए रेडी हूँ. सेकेंडरी वांट्स में क्या आएगा, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. कंफर्ट्स में मेरा क्या आएगा, द क्लोथ्स विच आई वेयर एट होम. ओके, नेसेसिटी तो क्लोथ है, बट घर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग. द कंफर्ट्स, कंफर्ट्स मतलब वो चीजें जिसके बिना मैं नहीं रह सकती. दैट इज नॉट अ नेसेसिटी, मैं रह सकती हूँ, सर्वाइव कर सकती हूँ, बट फॉर अ बेटर लिविंग आई एम कंज्यूमिंग दोज थिंग्स. ओके, तो प्राइमरी वांट्स मीन्स नेसेसिटी विदाउट विच आई कांट सर्वाइव. कंफर्ट्स मीन्स दोज ह्यूमन वांट्स without which I can survive, but for the better living of my life, that things are necessary. Okay, and luxuries. Luxuries means AC, okay, car. These items comes under the luxury. Okay, क्योंकि इनके बिना भी मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हूँ एंड जी ही रही हूँ. ओके, सो सेकेंडरी वांट्स में है कंफर्ट्स, लग्जरीज. प्राइमरी वांट्स के अंदर है नेसेसिटीज, जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज जो है हमारे इंक्लूड हो गए. Utility. Utility, what do you mean by utility? Utility means satisfaction derived from the consumption of any commodity or services. Okay, तो utility in short क्या होता है, satisfaction. एक कंज्यूमर को कितना satisfaction मिलता है किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करके, वो होती है यूटिलिटी. ओके, सो यूटिलिटी मीन्स कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को किसी भी चीज के कंजम्पशन से. इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और अ सर्विस. ओके, सो एनी कॉमोडिटी उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कंज्यूमर को कितना वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, वो होता है यूटिलिटी. एक कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक कोको कोला जो फर्स्ट मेरा कोको कोला बॉटल होगा, उससे मुझे कितना, उसको मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है रेदर देन द सेकंड यूनिट ऑफ द कोको कोला. तो फर्स्ट की जो यूटिलिटी है वो हाई होगी. क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम उस चीज का हंगर था, उसके लिए मैं स्टार्व कर रही थी. बट विद द सेकंड बॉटल ऑफ कोको कोला आई एम नॉट satisfied that much. Why? Because I have already drank one bottle of Coke. Okay, so that is the utility. सेकेंड बॉटल जो है उसकी यूटिलिटी कम है rather than the first bottle. Why? Because the consumption
से उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो गया सेकेंड बॉटल से. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विस. सेकेंड इज यूजुअली रेफर टू एज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन. तो यूटिलिटी ज्यादातर क्या होता है, वो सेटिस्फैक्शन जो कि मुझे मिल रहा है किसी भी कॉमोडिटी के कंजम्पशन से. Third is utility is subjective, based on whims and fancies of consumers. Okay, and it is also based on how and what are the things which are covered under the luxuries. Fancy items और you can say under the peer pressure भी इन चीज़ों को मैं consume करती हूँ. That is not basically a necessity. कुछ चीज़ें जो है जो कि मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं वो मेरा एक peer pressure की वजह से भी है. But early neoclassical economists assumed that it can be measured, called cardinal utility analysis. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, cardinal utility analysis और ordinal utility analysis. Ordinal utility analysis को हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पूरा उस टॉपिक को यू कैन से void कर दिया. क्यों? Because that is not at all related to the practical economics. Okay, cardinal means measurable. एंड ईच ऑफ द सेटिस्फैक्शन वो मेजरेबल होती है. सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर के वो मेजरेबल है, और ऑर्डिनल में इस चीज को पूरा वॉइड किया गया है कि वो मेजरेबल नहीं है. ओके, सो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको बताती हूँ. Walvis called the want satisfying power of goods as utils. ओके, तो हर एक कंजम्पशन से जितनी भी यूटिलिटी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स. Now, the main topic, marginal utility analysis. Marginal utility analysis क्या होता है? कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे अपनी इनकम को वो स्पेंड करते हैं डिफरेंट कॉमोडिटीज और सर्विसेज में जो कि उसको कंज्यूम करना है ताकि उसको बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. अंडरस्टूड? How a consumer spends or distributes his income on different commodities or services so that he can attain the maximum satisfaction out of the whole amount of the income he has spent. Okay, for example, if I have earned 10,000, okay, 10,000 मैंने earn किया एंड उसमें से आई एम रेडी टू स्पेंड 5,000. ठीक है, तो 5,000 मैं सेविंग करूंगी एंड 5,000 में आई एम रेडी टू स्पेंड इट ऑन द कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन. तो उन 5,000 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ और यू कैन से स्पेंड करूँ डिफरेंट कॉमोडिटीज और सर्विसेज में जो जो मेरी नेसेसिटी है, मतलब जो मुझे कंज्यूम करना ही है एवरी मंथ, तो मैं कैसे उनको स्पेंड करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए. ओके, 5,000 में मुझे कपड़े भी लेना है, मुझे घर भी चलाना है, मुझे अपने बुक्स में भी ध्यान देना है, मुझे सारी चीजें करना है. तो मैं कैसे मनी को स्पेंड करूं हर एक कॉमोडिटी एंड सर्विसेज में ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए. कुछ भी चीज ऐसा मेरा छूटे ना कि हाँ इस मंथ ये नहीं ले पाई क्योंकि पैसा कम था, उसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट मुझे चाहिए ही चाहिए मार्केट में, उसके कुछ ना कुछ कम यूनिट्स मुझे चाहिए मार्केट में for the consumption so that I can attain the maximum satisfaction. So marginal utility analysis is nothing but it is how a consumer spends his income on different goods and services so as to attain maximum satisfaction. अपनी इनकम को कैसे मैं स्पेंड करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ओके, concepts of utility. Now अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी मतलब हम कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे कि फर्स्ट यूनिट ऑफ टी से, एक कप चाय से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, फिर नेक्स्ट कप उसी चाय का मैंने पिया तो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, फिर थर्ड कप जब मैंने कंज्यूम किया तो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली. अब इन यूटिलिटी और यू कैन से जो सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी है उसको हमने डिवाइड किया है. ओके, विथ एवरी इंक्रीज इन द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर उसको हमने डिवाइड किया एंड उससे एक कंसेप्ट निकल के आया, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट वन इज इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल यूटिलिटी जब मैं पहला कप चाय का पी रही हूं तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो होती है इनिशियल यूटिलिटी. मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर को मिली आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी. ओके, पहली यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो होता है इनिशियल. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग. ओके, इनिशियल का जनरल मीनिंग है इन इंग्लिश स्टार्टिंग. तो स्टार्टिंग यूटिलिटी.
ओके, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, फर्स्ट यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ना टोटल यूटिलिटी किसी भी एक प्रोडक्ट को पूरा कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल कंजम्पशन के बाद जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, सो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट। टी इन जनरल से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, है ना, विथ एवरी यूनिट कंज्यूम्ड मुझे टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो आएगा मेरा टोटल यूटिलिटी के अंदर। मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवरी इंक्रीज इन द यूनिट विच आई एम कंज्यूमिंग, तो हर एक यूनिट में मेरा कितना कितना सेटिस्फैक्शन मेरा जुड़ता गया वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी में एड ऑन है। ओके, टोटल यूटिलिटी में जो एड ऑन होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ मैंने फर्स्ट टी लिया, मैंने फर्स्ट कप ऑफ टी लिया, मुझे उससे यूटिलिटी आई एम मेजरिंग इट अंडर द कार्डिनल फॉर्म। ओके, कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल्स में मैं उसको मेजर करूंगी अपनी यूटिलिटी को। तो पहला कप मैंने चाय का लिया तो उससे मुझे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी मिली 10। ओके, नाउ आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट कप मैंने सेकेंड कप लिया, उससे मुझे मिली यूटिलिटी 12। देन आफ्टर दैट थर्ड कप में मुझे यूटिलिटी मिली 15। तो ये 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 15 हुआ, तो ये 10 प्लस 2 जो है ये हमारा वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो टोटल यूटिलिटी में जो एड ऑन हो रहा है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एड ऑन द टोटल यूटिलिटी, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स टेक द बेटर एग्जांपल, चपाती। पहली चपाती से मुझे फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली 10। ओके, दैट वाज माय इनिशियल यूटिलिटी। आफ्टर कंज्यूमिंग द सेकेंड चपाती मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिली 12 बिकॉज आई वाज स्टार्विंग वेरी बैडली, तो मुझे और रोटी तो चाहिए था। तो फर्स्ट यूनिट जो थी, मतलब पहली चपाती से मेरा पेट थोड़ा शांत हुआ। देन नेक्स्ट यूनिट से मुझे थोड़ा हंगर जो है मेरी वो कम हुई, तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, मैं रिलीफ फील कर रही थी। सो मुझे उससे यूटिलिटी मेरी एड ऑन हुई 5। तो वो जो 5 एड ऑन है टोटल यूटिलिटी में वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग द थर्ड चपाती मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिली 18, क्योंकि अब मेरा पेट भी तो भर रहा था ना, तो वो जो रेट ऑफ यूटिलिटी है वो मेरा कम हुआ। सेकेंड चपाती में मुझे 15 तक आ गया था, 10 से 15। फिर थर्ड चपाती में 17, तो 5 जो है वो इनिशियल यूटिलिटी में 5 ऐड हुआ, वो मेरा सेकंड चपाती के बाद था। अब थर्ड चपाती के बाद बस 2 ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा पेट भर रहा था। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो डिक्लाइन होते जाता है जैसे जैसे आप कंजम्पशन किसी भी कमोडिटी का बढ़ाते जाते हो। ओके, सो इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी स्टार्टिंग यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे चपाती खा के कितना हुआ, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी में जो एड ऑन हुआ यूटिलिटी वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो बेसिक assumptions of marginal utility analysis. First one, cardinal measurement of utility. ये assume किया गया है कार्डिनल के अंदर, as I have said, that यूटिलिटी जो है वो हम क्वांटिटी में और यू कैन से नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट assumption जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का यही है कि यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सेकेंड assumption इज यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। ओके, मीन्स हर एक जो कमोडिटी का कंजम्पशन है उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं रोटी ही रोटी खा रही हूँ उससे मुझे अकेले सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ओके, मुझे दाल चाहिए होगा, तो दाल की सेटिस्फैक्शन अलग मेजर होगी, चपाती की सेटिस्फैक्शन अलग मेजर होगी, सब्जी की सेटिस्फैक्शन अलग मेजर होगी। तो यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। हर एक कमोडिटीज से जो यूटिलिटीज मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसको हम जनरलाइज नहीं करेंगे, उसको हम इंडिविजुअलाइज करेंगे। ओके, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब मनी के लिए जो मेरी सेटिस्फैक्शन है वो कभी कम नहीं होगी और यू कैन से कभी ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, उसके वजह से मेरे कंजम्पशन में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्राइस जो है कमोडिटी का उसके वजह से मेरे कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज
constant marginal utility of money. Definition. Law of diminishing marginal utility क्या बताती है हमें? The law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, utility from the successive units goes on diminishing. तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे मैं किसी भी कॉमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लगती हूँ तो उसके प्रति मेरा जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है वो कम होता जाता है. मेरी भूख उस चीज के लिए कम होती जाएगी. चपाती में अगर खाते जाऊंगी तो माय स्टमक इज नॉट अ रूम जो कि मैं चपाती उसमें फिल करती जाऊंगी. ओके, सो जैसे जैसे मैं चपाती इसको कंज्यूम करती जा रही हूँ मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उन चपाती से वो कम होता जा रहा है. आई वॉज स्टार्विंग बैडली. फर्स्ट सेकेंड रोटी तक मुझे बहुत ही ओके लगेगा, मेरी सेटिस्फैक्शन ट्रिपल लेवल में होगी. बट जैसे जैसे मैं रोटी खाते जाऊंगी मेरी भूख खत्म होती जाएगी. यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे मैं कंजम्पशन कर रही हूँ किसी कॉमोडिटी का उसके प्रति मेरी जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, उसके प्रति जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जा रहा है. ओके, सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, हिज यूटिलिटी फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स, जैसे जैसे बढ़ती यूनिट्स चली जाएगी उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना. ओके, सी आई हैव जस्ट पुट अ पिक्चर. दिस मैन इज ड्रिंकिंग अ कोक और यू कैन से अ वाटर. जब वो बहुत ज्यादा प्यासा था तो उसने ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम किया. ओके, तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला. अब वो नेक्स्ट डे आया, उस दिन वो कम प्यासा था. ओके, फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट दिन नहीं सॉरी थोड़ी देर बाद उसने वही चीज कंज्यूम किया. उसने पहले पी चुका था तो उसने कम कंज्यूम किया. फिर नेक्स्ट टाइम पे ही वाज ऑलरेडी and almost full, so he consumed very little of that drink. Why? क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती गई. फर्स्ट इंस्टेंस में उसने फुल कर लिया था, सेकेंड इंस्टेंस में he was half stuffed up, इसलिए उसने थोड़ी ही लिया उसकी क्वांटिटी. एंड द नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, he took a very slight quantity of it. Why? Because he was already stuffed up with that drink. सो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे मैं कॉमोडिटी को कंज्यूम करती जाऊंगी. ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे मैं कंज्यूमर ओके, सो जैसे जैसे आप किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे उसके प्रति आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी. नाउ दिस इज हियर tabular form of law of diminishing marginal utility. फर्स्ट यूनिट जो मैंने कंज्यूम किया उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 30 एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाज आल्सो 30. एंड इसको जनरलाइज करके यू कैन से द इनिशियल यूटिलिटी थी हमारी फर्स्ट यूनिट से जो कंज्यूम हुई थी वो हमारी थी 30. नाउ आफ्टर कंज्यूमिंग द सेकेंड यूनिट टोटल यूटिलिटी मेरी पहुंच गई 50 एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमारी थी 20. मार्जिनल यूटिलिटी देखिए आप 30 से जब 50 हुआ मतलब एड ऑन हुआ 30 में कितना एड ऑन हुआ 20, तो वो ही होती है मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ आफ्टर कंज्यूमिंग द थर्ड चपाती 60 हो गई थी मेरी टोटल यूटिलिटी. देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है. रेट जो है सेकेंड यूनिट में मुझे 20 प्लस ऐड हुई थी बट थर्ड में बस मेरा 10 ऐड हुआ है. ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी 10. After consuming the fourth chapati, now I am almost stuffed up. Okay, so 65 हमारी total utility पहुंची. 65 हमारी total utility पहुंची and marginal utility बस थी 5. अब मेरे पेट में और जगह नहीं बाकी है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है. Okay, we are assuming that I have just left that thing. Now after consuming the fifth unit of commodity, total utility मेरी 60 पे decline हो गई है. एंड आफ्टर कंज्यूमिंग द 6th यूनिट 45 पे हो गई है. व्हेन इट कम्स टू फूड आपकी ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है दैट यू आर वॉमिटिंग दैट थिंग, इसलिए इट इज टर्निंग इनटू द माइनस यूटिलिटी. रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी जो कि मुझे मिली है आफ्टर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी कितना एड ऑन हुआ है उस टोटल यूटिलिटी में. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस. आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव थी तो टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही थी
बट उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो कम होता जा रहा था. बट मार्जिनल यूटिलिटी जब जब पॉजिटिव थी टोटल यूटिलिटी बढ़ ही रही थी. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम. मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो गई थी तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम में थी 65. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस. और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है, तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाता है. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एड ऑन हो रहा था, तो जब एड ऑन नहीं हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पे जाएगी ही जाएगी. This is the graph marginal utility of tea consumed. I have shown here that with the increase in the utility, index of utility is on the left side, okay, is on the y-axis, and the quantity of tea, or you can say quantity of the roti, is on the x-axis. जैसे जैसे मैंने कंजम्पशन बढ़ाया अपनी रोटी का, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती गई. ओके, सो दिस ग्राफ विल टर्न इनटू द नेगेटिव. वो माइनस में चला जाएगा कब? जब टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होते जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा. तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ है ये, इसलिए वो क्या हुआ, एक्सेस से नीचे में चले गए, नेगेटिव एक्सेस में चला गया. क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Hope you will like this video, and hope my explanation was pretty clear, so that you will be explained. You will learn by this video. Thank you so much. Please like and subscribe my channel.